Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were doing unit 1, which is 741 IC op-amp, and the subject code is KC501. In the last lecture we were discussing about the general operational amplifier stages, जिसमें हमने different stages देखी थी operational amplifier की, which is bias circuit, input stage, second stage, output stage, short circuit protection circuitry, and last one is device parameters. Last में हमने device parameters के बारे में discuss किया था, right? So different device parameters हमने study किए थे. Now the next topic will be the DC analysis of 741 IC op-amp. अब जो भी हमने stages देखी थी operational amplifier की, उनकी DC as well as AC analysis करनी है. So basically ये हमारे पास outline थी unit 1 की, जिसमें हमने general operational amplifier stages के बारे में study करना था. जो भी हमारी stages हैं, उनके बारे में study करना था. This is already done. Now the next one is DC analysis of 741. तो अब हम DC analysis करेंगे and after that we will do AC analysis as well as gain and frequency response terms हम study करेंगे. So now from this lecture onwards we will focus on the DC analysis of op-amp IC741. So DC analysis of op-amp में हमने क्या-क्या study करना है? डिफरेंट स्टेजेस के डीसी एनालिसिस करेंगे. तो जो भी हमने स्टेजेस हमने फर्स्ट टॉपिक में की थी, सो वी विल डिस्कस अबाउट द बायस सर्किट. अगेन जो बायस सर्किट है उसका रेफरेंस करंट कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट स्टेज. Then we will discuss about the intermediate stage, second stage, or you can say second stage. Then we will discuss about the output stage. So different stages में 2 or 3 lectures में we'll discuss this topic, DC analysis. So starting with the DC analysis, we have this circuit 741 op-amp circuit. ये हमारे पास जो circuit है, ये circuit है 741 op-amp का internal circuitry. So last lecture में we have discussed about this lecture already. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं. कैसे ये हमारे पास बायस सर्किट था. देन वी हैव डिफरेंट 11 एंड Q11 एंड Q10 हमारे पास विडलर मिरर करंट सर्किट था. देन वी हैव Q9 एंड Q8 जो कि स्टेज 1 को बायसिंग प्रोवाइड कर रहा था. दिस इज माय स्टेज 1. स्टेज 1 में क्या है? इट इंक्लूड्स ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम Q1 टू Q7, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. राइट. तो दिस वाज माय इनपुट स्टेज. देन हमारे पास सेकंड स्टेज थी. सेकंड स्टेज में क्या था? वी हैव Q16, Q17 along with 2 resistors. एंड जो ट्रांजिस्टर Q17 है, इसका कलेक्टर इज कनेक्टेड विद Q13B. तो यहाँ पर सेकेंड स्टेज में Q13B ट्रांजिस्टर भी हमारे पास था. Then we have Q18, 19 and 23. ये तीनों ही ट्रांजिस्टर्स आउटपुट स्टेज की बाइसिंग के लिए यूज हो रहे थे. राइट. आउटपुट स्टेज में क्या आ रहा है हमारे पास? Q14 and Q20 is our output stage. So basically जो left over parts हैं, that is Q15, Q21, R6, R7. Then we have Q22 and Q24 along with this resistance R11. ये हमारे क्या थे? ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किटरी के एलिमेंट्स थे. So this was our internal circuitry for 741 IC op-amp, and now we will discuss the DC analysis of each and every component used over here. जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, सबको हम कैलकुलेट करेंगे, सबकी कैलकुलेशन देखेंगे. रेजिस्टर्स की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, बाय डिफॉल्ट हम यही वैल्यूज यूज करेंगे. कैपेसिटर इज आल्सो गिवन. सो जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो डीसी एनालिसिस में हमें क्या करना होता है? जितने भी ट्रांजिस्टर्स हमने यूज किए हैं, जितने भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वेदर इट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, सबके लिए हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती है, 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है. एंड द फर्स्ट टर्म इज we need to calculate the base current, then we need to calculate the collector current and the emitter current. हमें तीनों currents को calculate करना होता है in case of DC analysis, right? So starting with the first stage, which is the bias circuit stage. तो ये हमारे पास first stage है. First stage कौन सी है? Q11 and Q12 along with this resistance R5. तो हमारी first stage ये आती है Q11, Q12 and R5. इसके across यहाँ पर mentioned है कि current flow कर रहा है I reference. So now we will calculate this current value I reference. इसे हम calculate करेंगे, right? So okay. So here from here you can see this is my bias circuit. सबसे पहला stage कर रहे हैं. Reference bias current calculate करना है हमें.
सो हमारे पास ये सर्किटरी है, ये Q12 है, दिस इज माय Q11, राइट? वेट, लेट मी zoom it. Okay, right. So this is my Q12, this is my Q11 and Q12 क्या है? ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। कैसे पता चलता है? करंट फ्लो से हमें पता चल जाता है कि वेदर इट इज PNP और NPN, बिकॉज करंट हमेशा P टू N फ्लो करता है। सो अगर P टू N फ्लो करता है तो दैट मीन्स दिस विल बी P, ये N होगा, ये P होगा, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। सो इट इज PNP एंड दिस वन इज NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ हमने VCC अप्लाई किया है। Q12 का ये एमिटर है, this terminal is base terminal, this is the collector terminal. यहाँ R5 resistor connected है जिसकी वैल्यू 39 किलो ohms given है। Then we have Q11 जिसका कलेक्टर और Q12 का कलेक्टर थ्रू द रेजिस्टेंस R5 कनेक्टेड है। अगेन जो कलेक्टर और बेस है वो शॉर्ट है एंड एमिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव सप्लाई, और बेस और एमिटर के बीच का जो पोटेंशियल है फॉर Q11 इट विल बी VBE11, वेयर एज बेस और एमिटर के बीच का पोटेंशियल फॉर Q12 विल बी VEB12, राइट? तो वी आर कंसिडरिंग कि मान लेते हैं इस R5 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो करता है एंड दैट करंट इज मेंशन्ड बाय दिस वैल्यू I रेफरेंस। हमने माना है कि इस R5 के अक्रॉस एक करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट इज I रेफरेंस। ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर इस सर्किटरी में हमने VCC सप्लाई अप्लाई किया है। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। सो लेट अस कैलकुलेट कि ये करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई KVL। हम यहाँ पर KVL को अप्लाई करेंगे। सो KVL कैसे अप्लाई किया है? हमने यहाँ से यहाँ तक KVL अप्लाई किया है। क्या लाइन है हमारी KVL की? फ्रॉम दिस VCC टू दिस वे, यहाँ से VEB से होते हुए फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि ये बेस और कलेक्टर हमारा शॉर्ट है तो VCC कलेक्ट करेगा, देन VEB12, फिर ये शॉर्ट हो रखा है, देन कंसिडरिंग R5 एंड I रेफरेंस, देन अगेन यहाँ पर शॉर्ट है, ये वे होगा, देन VB11, देन माइनस VEE। तो यहाँ पूरे में हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई KVL। सो जब KVL अप्लाई किया सो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? द इक्वेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम VCC माइनस VEB12, देन उसके बाद वे कहाँ है? यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? इट इज I रेफरेंस इनटू R5, सो माइनस I रेफरेंस इनटू R5, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप व्हिच इज माइनस VBE11 एंड देन माइनस ऑफ माइनस VEE। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फ्रॉम KVL, राइट? अब इस इक्वेशन को जब हमने यूज किया, इसको हम रीअरेंज करेंगे बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर I रेफरेंस। I रेफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है, तो I रेफरेंस वाली टर्म को हमने एक साइड रख दिया इक्वल्स टू के, एंड बाकी सारी टर्म्स हम इक्वल्स टू के अदर साइड पे ले गए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है विच इज I रेफरेंस इंटू R5 इज इक्वल टू VCC माइनस VEB12 माइनस VBE11 प्लस VEE, राइट? तो ये इक्वेशन आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर I रेफरेंस, तो R5 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो दैट मीन्स इस करंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये सारी टर्म्स पता हो, राइट? सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो 741 IC है उसे हम +5 से प्लस माइनस 5 वोल्ट से लेके प्लस माइनस 18 वोल्ट तक सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट अस से कि जो VCC है वो हमने प्लस माइनस 15 वोल्ट्स लिया है। सो दैट मींस VCC क्या हो गई? प्लस 15 वोल्ट्स एंड VEE क्या हो गई? माइनस 15 वोल्ट्स, राइट? सो VCC हमें पता है इट इज प्लस 15 वोल्ट्स एंड VEE इज माइनस 15। तो ये दोनों की वैल्यूज तो हमें पता चल गई। तो द नेक्स्ट वन इज R5 इज ऑलरेडी गिवन विच इज 39 किलो ओम्स। अब हमें I रेफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज कौन सी हैं? हमें VEB12 और VBE11 की वैल्यूज को देखना है कि वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं। सो हियर वी आर अज्यूमिंग कि लेट अस से कि ये जो ट्रांजिस्टर्स है इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जो जो बेस एमिटर वोल्टेज है फॉर Q11 एंड Q12 इट इज 0.7 वोल्ट्स। अदरवाइज हमारे पास इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने का और फॉर्मूला भी होता है विच वी विल डिस्कस इन द फर्दर कैलकुलेशन। जो आगे आने वाली कैलकुलेशन है उसमें हम दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, बट वो फॉर्मूला अभी हम यूज क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी कंपोनेंट नोन नहीं है। मतलब हमारे पास अभी ना तो कलेक्टर करंट है Q12 या Q11 का, ना ही हमारे पास बेस करंट है, ना ही हमारे पास एमिटर करंट है। हमारे पास करंट की कोई वैल्यू नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी आर अज्यूमिंग कि लेट अस से इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड इट्स वैल्यू इज 0.7 volts,
राइट। सो वी आर कंसिडरिंग कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0.7 वोल्ट्स है। अब ये सारी वैल्यू हमें पता है, तो जब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आई रेफरेंस की वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.7 मिली एम्पियर, राइट। सो दैट मीन्स जब हम डीसी एनालिसिस में फॉरवर्ड मूव करेंगे तो जहां जहां पर भी आई रेफरेंस की वैल्यू का यूज होगा वहां वहां हम आई रेफरेंस की वैल्यू को 0.7 मिली एम्पियर लेंगे, राइट। Okay. Now next, till now we have discussed about the first bias circuit जो Q11 और Q12 था. Now the next bias circuit, जो next bias circuit है वो कौन सा circuit है, वो है Q11 and Q10 का relation. Q11 और Q10 basically एक Widler current mirror circuit बना रहे हैं. इसकी detailed explanation मैंने Widler current mirror सर्किट में दी हुई है ऑलरेडी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो आप वहां से भी इसकी वर्किंग देख सकते हैं, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पर Q11 और Q10 एक करंट मिरर डिजाइन कर रहा है। Q11 जो है इट इज कनेक्टेड विद Q12, ये Q12 से कनेक्टेड था, यू कैन सी ओवर हियर, Q11 Q12 से कनेक्टेड था और Q12 की वजह से यहाँ एक आई रेफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर Q12 को डिजाइन करने की बजाय सिर्फ यहाँ पर एक आई रेफरेंस करंट सोर्स लगा दिया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमने एक आई रेफरेंस करंट सोर्स लगा दिया है लाइक दिस, राइट। एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद अ ट्रांजिस्टर Q10 एंड वी नो दैट कि करंट मिरर में क्या होता है, यहाँ पर अगर ये इनपुट करंट आई रेफरेंस है तो Q10 का जो आउटपुट करंट होगा वो कहाँ होगा, वो इसके कलेक्टर पर होगा। सो दैट मींस इस सर्किट के लिए आउटपुट करंट इज IC10। IC10 क्यों लिया है, बिकॉज इस ट्रांजिस्टर का नंबर 10 है, तो इसके कलेक्टर पे जो करंट होगा दैट विल बी IC10, right? So now let us calculate this circuit, analyze this circuit. So यहाँ पर हमारे पास बेस और एमिटर के बीच में we know that the potential is VBE11, right? And Q10 यहाँ पर हमने कहा है कि यहाँ पर बेस और एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल है, let us say it is VBE10, मान लेते हैं कि वो VBE10 है, and this resistance is R4 and इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है इन द मेन डायग्राम, उसमें हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पर आई हैव रिटन IE10 इज इक्वल टू IC10, मतलब इस R4 के अक्रॉस अगर करंट ये एमिटर टर्मिनल है तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो एमिटर करंट होगा, सो दैट विल बी IE10, बट वो IC10 के इक्वल लिखा है, दैट मीन्स कि जो बेस करंट है दैट विल बी जीरो, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तभी हमारा IE10 IC10 के इक्वल है। सो वी आर एज्यूमिंग ओवर हेयर, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो बीटा फैक्टर होता है हमारे पास, जो करंट गेन फैक्टर है, वो इतना ज्यादा हाई है कि हमारा जो बेस करंट है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया। Why? Because there is a relation between beta and IB base current, that is beta will be equal to IC by IB. तो अगर बीटा बहुत ज्यादा है तो that means base current will be approximately equal to zero. अगर बीटा infinite है तो base current will be zero, right? So now what I have written, now the transistor Q11 is biased I reference, Q11 जो है वो I reference से biased है, and the voltage developed across it is used to bias Q10 which has a series emitter resistance R4. That means Q11 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है उस वोल्टेज की वजह से जो Q10 ट्रांजिस्टर है वो भी बायस हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं ये पैरेलल है, एंड वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कि Q11 की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो Q10 को बायस कर रहा है, सो दैट मीन्स VBE11 जो है वो जो Q10 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। सो दैट मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4। वो कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट कि VBE10 प्लस IC10 इंटू R4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इस ब्रांच के पोटेंशियल के इक्वल होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, जो Q11 की टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल Q10 की टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल होगा। तो Q11 पे जो पोटेंशियल है इट इज VBE11, सो आई हैव रिटन हियर VBE11 एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट Q10। तो यहाँ कितना पोटेंशियल है, VBE10 प्लस the potential across this R4 which is VBE10 plus IC10 और IE10 into R4। तो ये चीज हमने यहाँ लिख दी, IE10 की जगह हमने IC10 लिख दिया। Why? Because we are considering that this base current is approximately equal to zero, therefore IC10 will be equal to IE10, तो ये वैल्यू आ गई।
अब हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस करंट, हमें इस करंट को कैलकुलेट करना है क्योंकि ये आउटपुट करंट है। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस VBE10 एज वेल एज VBE11। तो प्रीवियस में जब हमने बेस एमिटर की वोल्टेज को कैलकुलेट किया था तो हमने इसकी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0.7 वोल्ट्स रख दिया था, कंसीडरिंग दैट इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। बट नाउ अब हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आ चुकी है कलेक्टर करंट की एक, तो हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इससे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो वोल्टेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज VBE इज इक्वल टू VT इंटू लॉग ऑफ IC बाय IS। यहाँ पर VT क्या है, इट इज थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज मीन्स जिसे वी कैन रिप्रेजेंट दिस थर्मल वोल्टेज बाय KT बाय Q। K is the Boltzmann constant, T is the temperature and Q is the charge। एंड जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 25.8 मिली वोल्ट्स, राइट। सो वी कैन कंसिडर इट 26 मिलीवोल्ट। तो जहां जहां हम VT यूज करेंगे वहां वहां हमने 26 मिलीवोल्ट्स की वैल्यू को यूज किया है। So I am taking VT as 26 millivolts. Then log of IC by IS. IC is basically the collector current of the transistor and IS is the reverse saturation current. जो IS है वो क्या है, वो हमारा reverse saturation current है, right? So that means इस formula की help से we can calculate the value for VBE11 as well as VBE10। क्यों, क्योंकि VT इज द कांस्टेंट, VT कांस्टेंट रहेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज आल्सो कांस्टेंट, बट जो IC है वो VB11 के लिए IC11 हो जाएगा और VB10 के लिए IC10 हो जाएगा। एंड फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ यू कैन सी जो IC11 है, IC11 का मतलब क्या है, जो Q11 के कलेक्टर पर जो कलेक्टर करंट होगा IC11 वो करंट वो होगा। लेकिन क्योंकि जो कलेक्टर और बेस टर्मिनल है वो शॉर्ट है और यहाँ पर हम वी आर कंसिडरिंग कि बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, कोई करंट नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स जितना भी करंट यहाँ से आ रहा है वो सीधा का सीधा हमारे कलेक्टर पे जा रहा है। तो दैट मीन्स IC11 विल बी इक्वल टू I रेफरेंस, राइट। सो लेट अस सी, okay, now from here we can see, so VB की वैल्यू हमने निकाली है कि that this equation is derived from the diode current equation। और बेसिकली अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई, that VB is equal to VT log IC by IS, ये इक्वेशन कहाँ से आती है, इस इक्वेशन को हम करंट की इक्वेशन से ड्राइव करते हैं एंड इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ मेंशन की है, यू कैन सी ओवर हियर। और करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, I is equal to IS into E raised to power VD by VT, where VT is a threshold voltage and VD is a voltage across diode. IS is the reverse saturation current. Right. I have written over here that VT is KT by Q at 300 Kelvin and it is equal to 26 millivolts. राइट, तो अगर ये इक्वेशन है IS को हम I के नीचे लेके आएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। एक्सपोनेंशियल टर्म को रिमूव करने के लिए व्हाट विल डू, वी विल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब नेचुरल लॉग लेंगे तो वी हैव दिस इक्वेशन VD by VT is equal to log of I by IS। तो यहाँ से जो हमारे पास VD है वो आ जाएगी विच इज VT log of I by IS एंड यू कैन सी दैट ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी ऊपर VBE की, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस इक्वेशन VD। सो दैट मीन्स VD एंड VB जो है वो इक्वल है और हमारे पास ये इक्वेशन है वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने की अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन। सो इस इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट द base emitter voltage at Q11 as well as Q10. So let us calculate Q11 VBE10 as well as VBE11। तो जब हमने VBE11 और VBE10 को कैलकुलेट किया, so we know that VT is a constant term in both the equations, so यहाँ आ गया VT log of 10 के लिए collector current will be IC10 by IS and for VBE11 it will be IC11 by IS। Now, in the previous lecture, we have discussed about the various device parameters, default parameters, which जो हम use करते हैं जब हम 741 IC को use करते हैं, because 741 IC में जो default parameters हैं वही use किए गए हैं। So the default parameters जो अगर NPN और PNP की बात करें, so जो IS है reverse saturation current, it is 10 raised to power minus 14 ampere, and same for the this PNP, it is 10 raised to power minus 14। तो दैट मीन्स जब VBE10 और VBE11 को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो IS है, ये IS और ये IS, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 10 raised to power minus 14 एम्पियर। सो नाउ अगर इस इक्वेशन को देखें हम, VT की वैल्यू 26 मिली वोल्ट है, IS की वैल्यू 10 raised to power minus 14 वोल्ट है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस। सो कैसे होगा ये,
इस पेज पे मैंने बाकी के डिवाइस पैरामीटर्स लिखे हैं, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड येट, सो जब ये रिक्वायर्ड होंगे वी विल डिस्कस देम, राइट? देन वी हैव, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दीज टू टर्म, राइट? IS की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई डिवाइस पैरामीटर से, which is 10 raised to power minus 14 ampere. So moving on to the next page. Okay, so let us check over here. So now IS is equal to 10 raised to power minus 14. Also we know that कि IC11 जो I reference के equal है, why? Because base current is approximately equal to 0, तो दोनों current same हो गए, तो ये सारी values जब हमने VB10 और VB11 में रखी तो हमारे पास ये equation आ गई, राइट? तो अब इस इक्वेशन को, जो हमने पीछे इक्वेशंस लिखी थी कि IC10 जो है इंटू R4 इज इक्वल टू VB11 माइनस VB10, यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट करंट IC10। यहाँ से हम IC10 को कैलकुलेट कर सकते हैं। IC10 क्या था? We were calculating the collector current of transistor Q10. So now we can calculate this output current IC10, right? So ये सारी हमने इक्वेशन यहाँ रख दी, VBE11 और VBE10 की वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में रख दी। So now I have this equation. अब ये log की टर्म है, log A by B minus log C by B है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से जब हमने इसे कैलकुलेट किया, सो वी गेट दिस, IC10 into R4 is equal to VT log of I reference by IC10. Now हमें कैलकुलेट क्या करना था? I reference की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रीवियसली, अभी हमने पिछले सर्किट में I reference की कैलकुलेट की थी, which is 0.7 मिली एम्पियर था। VT हमें पता है 26 मिली वोल्ट, R4 is also given. Now we need to know this value IC10, लेकिन IC10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम इटरेटिव वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इटरेटिव मेथड में क्या होता है? इटरेटिव मेथड में बेसिकली व्हाट वी डू, हम कंसिडर करेंगे कि सबसे पहले IC10 की हम एक वैल्यू ले लेंगे कि लेट अस से कि IC10 की वैल्यू ये है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जिसकी वजह से इस IC10 की एक आउटपुट आएगी। जब वो आउटपुट आएगी अगेन हम उसे यहाँ पुट करेंगे, देन अगेन इसकी एक आउटपुट आएगी, एंड इस तरह से हम 6 to 7 साइकिल्स तक उसे मूव करेंगे, जिसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट तक, जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम इस साइकिल को चलाते रहेंगे, एंड फाइनली जब 4 डेसिमल्स तक हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू हम एज अ फाइनल वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो जब इटरेटिव मेथड हमने यूज किया तो हमारे पास जो IC10 की वैल्यू आई, दैट इज 19 माइक्रो एम्पियर, right? So today we have discussed the biasing circuits, including Q11 and Q12, and then we have discussed the biasing circuit Q11 and Q10. यहाँ से हमने I reference की वैल्यू निकाली, and then we have calculated the value for IC10, right? So this is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about the input stage TC analysis. Input stage की हम discussion करेंगे. For now, and if you have any query regarding the biasing circuit, so you can drop your question in the comment box. Thank you so much.